Now shifting focus to Uttarakhand, a major rescue operation is underway in Uttarkashi district of northern India amid fresh warning of heavy rainfall across the state in the next 24 hours. Now as of yesterday evening, about 650 people have been successfully evacuated from the flood affected areas of Dharali and Harshil. Meanwhile, 300 are still feared trapped. Now, efforts are currently ongoing to rescue more individuals amid forecast of light rainfall in Uttarkashi. In fact, sniffer dogs, thermal imaging cameras and earth movers have all been deployed to find people suspected to be buried beneath the 40-foot sludge. Remember, just after the landslide hit the area of Dharali, it was covered with immense amount of mud and sludge, and now rescue efforts are on to find more survivors beneath that 40-foot sludge. In fact, a drone view of the area shows officials attempting to build a makeshift bridge to reach Dharali village. This is after the bridge connecting it was swept away during the landslide. These are the drone visuals. Efforts are on to build a makeshift bridge here to reach the Dharali village so that more aid can reach the area. And this is after the bridge connecting it was swept away during the landslide. And these are the visuals showing you the aftermath of the landslide that hit the Dharali village. Entire village being swept away. In fact, rescue efforts are on the ground. You have several teams working on the ground, including NDRF, SDRF as well. As far as the number goes, 650 people have been evacuated, but about 300 are still feared trapped. Meanwhile, in another development, mobile network has been restored in Harshil, which is a positive development. But still, efforts are on to ensure that more aid can reach the Dharali village, and therefore efforts are on to build a makeshift bridge here, essentially. We also have a ground report from the Uttarkashi by my colleague Puneet Sharma. Let's take a look. उत्तरकाशी के धराली में प्राकृतिक आपदा को आए हुए आज 5वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज कर दिया गया है। 629 लोगों को वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन सड़क के जरिए सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को धराली तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह है लगातार उत्तरकाशी में हो रही लैंडस्लाइड। इस वक्त हम भटवाड़ी में खड़े हैं। ये सड़क पहले भी टूट चुकी थी और यहां से उत्तरकाशी के आगे यानी हर्षिल और धराली का संपर्क टूट गया था और यही वजह है कि सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन इस सड़क को बनाया गया था। लगातार तीसरे दिन एक बार फिर यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। कल शाम लगभग 3 बजे से 4 बजे के आसपास से बारिश मूसलाधार शुरू हुई थी, जो पूरी रात होती रही और उसके बाद आप देखेंगे ये जो पहाड़ है यहां पे एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो इस सड़क पर आकर के गिर गए और ये मुख्य सड़क है जो कि भटवाड़ी की सड़क है और यही आगे जो गंगरानी होते हुए आगे हर्षिल और धराली तक जाती है और यहां से ही जो ट्रक, जेसीबी और तमाम जो क्रेन हैं वो इसी रास्ते जाते हैं, लेकिन एक बार फिर ये रास्ता इन बड़े पत्थरों की वजह से रुक गया है और यहाँ पर काम चल रहा है। आप देखिए बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो भी ऊपर से पहाड़ से टूट करके नीचे आ गए हैं, नीचे बड़े पत्थर हैं, लेकिन इस सड़क को जो बनाने का काम है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। सुबह सुबह ही यहाँ पर जेसीबी को लगा दिया गया है। जेसीबी इस वक्त यहाँ पर रास्ता साफ करने की कोशिश कर रही है। उसको काफी घंटे हो चुके हैं, 1.5 घंटे, क्योंकि जो मलबा था वो काफी ज्यादा बाहर जो पहाड़ से नीचे की तरफ गिरा था। ये पूरी सड़क इस पर मलबा था, ये टूट चुकी है, धंस भी रही है, मिट्टी की सड़क है और हाल आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना ज्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, तबाही हुई। ये जो पूरी सड़क आप नीचे की देखेंगे वो नीचे तक की पूरी सड़क टूट चुकी है और बराबर में जो भागीरथी नदी का फ्लो है एक बार फिर बढ़ा हुआ है, क्योंकि कल शाम 3 से 4 बजे के आसपास से मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी। अगले 2 दिन और भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अभी भी आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और आप देखेंगे कि जेसीबी जो कि लगभग 70 मीटर की सड़क है
बटवाड़ी की वो एक बार फिर जो टूटी हुई है लैंडस्लाइड की वजह से, इस सड़क को एक बार फिर सही करने का काम किया जा रहा है। जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटाया गया, लेकिन ये सड़क चूंकि मिट्टी की हो चुकी है, पूरी तरीके से धंस रही है, तो कोई भी गाड़ी इधर नहीं जा पाएगी। इस वजह से लगातार जेसीबी का काम है, लेकिन फिलहाल ये सड़क भटरानी की जो आगे हर्षिल और धराली की तरफ जाती है, उस सड़क को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। गाड़ियां यहां पर रुक गई हैं और गंगरानी में भी जो पुल टूटा हुआ था उसको बनाने का काम जारी है। आज हो सकता है कि वो पुल बन जाए, जिसके बाद क्रेन, बुलडोजर, ये तमाम चीजें लेकर के बीआरओ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ आगे धराली और हर्षिल की तरफ जा सकती है और वहां पर जो जनजीवन सामान्य करने के लिए जो भी वहां पर पुल और सड़क बनाने का काम है उसको करेगी, क्योंकि गंगरानी के आगे भी 3 जगह पर सड़क पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है। तो फिलहाल 629 लोगों को एमआई, चिनूक और 8 दूसरे छोटे हेलीकॉप्टर के जरिए अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और वहां पर तकरीबन 200 लोग फंसे हुए हैं, जिनको कि हर्षिल के बेस कैंप में ले आया गया आर्मी के, और उनको अब एयरलिफ्ट किया जाएगा। कल शाम के बाद चॉपर ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया था, क्योंकि मौसम लगातार खराब था और बारिश लगातार चल रही थी। लेकिन अभी सुबह से कुछ बारिश रुकी हुई है, लेकिन कई इलाकों में उत्तरकाशी के एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है।